Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you back again to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 5.5 Classful and Classless Addressing Scheme in Networking. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to describe classless addressing and describe classful addressing. Course outcome that is going to map by this unit is CO5, that is you will be able to configure the network component and assign IP address, and program outcomes that are going to satisfy by this unit or by these videos are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic internet protocol as well as packet format of internet protocol version 4. Now let us see what is IPv4 addressing. So internet protocol hierarchy contains several classes of IP addresses to be used efficiently in various situations as per the requirement of host per network. इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें नंबर ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करता है एड्रेसेस को असाइन करने के. सपोज किसी यूजर की रिक्वायरमेंट है, मीन्स कितने नंबर ऑफ नोड्स उसको लगने वाले हैं. सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ नेटवर्क हमको इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट एड्रेसेस प्रोवाइड करता है. ओके, so normally the addresses are this addressing scheme of IPv4 is divided in two parts, classful addressing and classless addressing. So broadly IPv4 addressing system is divided into 5 classes of IP addresses, and all the 5 classes are identified by the first octet of IP address. So now we are talking about classful addressing scheme. Okay, we are talking about classful addressing scheme. So normally अगर हम IP को अगर consider करते हैं, so the first octet referred here is the leftmost of all. Okay, this is the first octet. ये हमारा IP address है कोई. This is first octet, second octet, third octet and fourth octet. The octets numbered as follows depicting dotted decimal notation of IP addresses. IP decimal notation. तो इस तरह से हम IP address provide करते हैं, और अगर उसका हम बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं तो हम इस तरह से उन एड्रेसेस को देख सकते हैं. सो और IP एड्रेस इज ऑफ 32 बिट. सो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट. द नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड द नंबर ऑफ होस्ट पर क्लास कैन बी डिराइव्ड बाय दिस फॉर्मूला. ओके, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो उससे हमारे कितने नेटवर्क्स फॉर्म होने वाले हैं और हमारे नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ नोड्स रहने वाले हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स, अगर हमारे पास कोई क्लास है, सो अभी हम देखेंगे फर्दर जितने क्लासेस में हमारा नेटवर्क डिवाइड होता है. सो अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमको कितने फॉर्म कर सकते हैं हम पर्टिकुलर क्लास में, वो इससे हम डिराइव कर सकते हैं 2 नेटवर्क बिट्स एंड नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क. एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट को IP प्रोवाइड करेंगे वो इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं 2 होस्ट बिट्स माइनस 2. सो अगर हम पर्टिकुलर एक क्लास लेते हैं IP का, तो उसमें हम कितने सारे नेटवर्क्स फॉर्म कर सकते हैं और पर नेटवर्क, हर एक नेटवर्क में कितने सारे नोड्स को हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, so there is 2 types of addressing scheme in IPv4, classful and classless. So now classful addressing. IPv4 addressing use the concept of classes. This architecture is known as classful addressing. अगर हम IPv4 के आर्किटेक्चर में क्लासेस के बारे में बोलते हैं तो उस स्कीम को हम classful addressing scheme बोलेंगे. So in classful addressing scheme there are 5 classes in which address space is divided A, B, C, D and E. सो टोटल एड्रेस स्पेस जो है हमारे पास अवेलेबल, उस एड्रेस स्पेस को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है A, B, C, D एंड E. ईच क्लास ऑक्युपाइज सम फ्रैक्शन ऑफ द एड्रेस स्पेस, और फिक्स्ड स्पेस हमने यहाँ पे अलोकेट की है या फिक्स एड्रेस स्पेस हमने मैनेज करके दिया है पर्टिकुलर क्लास को. ओके,
So we can find the class of an address when given the address in binary notation or dotted decimal notation by checking the first few bits or first byte. तो अगर हमको कोई आईपी एड्रेस दे देगा और हमको बोलेगा कि तुम आइडेंटिफाई करो कि दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ क्लास फुल एड्रेस, ओके, सो उसके कुछ बिट्स या कुछ बाइट्स देख के ही, स्टार्टिंग के बाइट्स देखते ही हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए, दिस एड्रेस बिलोंग टू क्लास बी, दिस एड्रेस बिलोंग टू क्लास सी, इस तरह से, ओके. नाउ वी विल सी दैट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. So classes and blocks. So there is a problem with the classful addressing scheme, that is each class is divided into a fixed number of blocks with each block having a fixed size. So actually fixed number of blocks particular class को assign किए गए थे, okay, और उस block का size कितना था और कितने number of nodes हम connect कर सकते हैं, ये सब information classful addressing में दी गई थी. लेकिन यहाँ पे किसी को अगर ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगने वाले हैं तो वो क्या करेगा, या फिर 128 नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे दिए हैं लेकिन अगर हमको 100 ब्लॉक्स ही लग रहे हैं हमारे नेटवर्क को, तो बाकी के 28 जो ब्लॉक्स है वो वेस्ट जा रहे थे, ओके. तो इस तरह से ये जो क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है थोड़ा फेल्यूर हो गई. सो हम देखेंगे क्लास ए में 128 ब्लॉक्स असाइन किए गए थे और उनका ब्लॉक साइज था 16 lakhs, sorry, this much of block size, and it is used for unicast addressing, okay. Then B and C, again B में 1600 384 and block size इतना था और unicast के लिए, and C में भी number of blocks इतने थे and block size इतना था and unicast के लिए. लेकिन D and E जो है उनका block size बहुत बड़ा है लेकिन वो multicast के लिए यूज किए गए हैं. सो इसको हम हाथ नहीं लगाते हैं, डी एंड ई को कोई हाथ नहीं लगाता है. सो यूजर को जो भी आईपी एड्रेस असाइन होता है वो ए, बी एंड सी इन तीनों क्लासेस में से ही असाइन होता है. नाउ वी विल सी वन बाय वन क्लासेस. क्लास ए, द क्लास ए एड्रेसेस आर डिजाइन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ अटैच होस्ट और राउटर्स. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, so large number of IP address has to be generated. बहुत सारे IP address की जरूरत पड़ेगी. At that time we will use class A. In class A address the first bit of the first octet is always 0. अगर हम बाइनरी में देखेंगे इसका नोटेशन, तो हमेशा ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये हमारा IP एड्रेस है, ओके. सो दिस फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट. तो अगर हम फर्स्ट ऑक्टेट का अगर MSB देखेंगे सो दैट इज ऑलवेज 0. Thus class A address range from 000 to 127 मीन्स सिंपली हम कंसिडर करेंगे कि 0 to 127. अगर हम बाइनरी में देखेंगे इसको तो डेसिमल में देखेंगे तो 0 to 127 इतने ही उसकी रेंज है. द फर्स्ट 8 बिट्स और द फर्स्ट ऑक्टेट डिनोट द नेटवर्क पोर्शन. जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट, इट डिनोट्स द एड्रेस नेटवर्क पोर्शन. तो नेटवर्क कौन सा है, एंड द रेस्ट 24 बिट्स और 3 ऑक्टेट्स बिलोंग टू द होस्ट पोर्शन. और ये जो 3 बिट्स है ये होस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड ये फर्स्ट ऑक्टेट जो है मीन्स फर्स्ट 8 बिट्स जो है हमारा 1 बाइट वो हमारे नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो बताएगा, ओके. तो किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है, हम इस फर्स्ट ऑक्टेट का ये MSB देखेंगे और वो भी बाइनरी में देखेंगे. इफ दिस MSB इज 0, फर्स्ट MSB ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट इज 0, देन इट बिलोंग्स टू क्लास A. दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास A, ओके. सो 0 और 1 अगर दोनों में से कोई भी ये होता है उसका MSB, सो दैट बिलोंग्स टू क्लास A. तो यहाँ पे 1 है, सो इट बिलोंग्स टू क्लास A. देन क्लास B. The class B addresses are designed for mid-size organizations to manage tens of thousands of attached hosts or routers. अगर मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशन है तो हम क्लास बी एड्रेसेस का यूज करेंगे. सो इन क्लास बी फर्स्ट ऑक्टेट वुड ऑलवेज स्टार्ट विथ 10. तो बाइनरी में अगर हम देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है MSB इज 1 एंड नेक्स्ट बिट इज 0 ऑलवेज. तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये क्लास बी का एड्रेस है. Thus, it will range from 128 to 191. Okay. So, अगर हम इसको ही
डेसिमल में देखेंगे तो ये 128 टू 191 तक रेंज हो सकता है. ओके, सो 128 टू 191 तक. सो द फर्स्ट 16 बिट्स मीन्स पहले दो बिट्स जो है ऑफ डिनोट पहले दो बाइट्स जो है विच डिनोट द नेटवर्क पोर्शन. मीन्स अब ये दो बाइट्स जो है विच डिनोट द नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड द रिमेनिंग 16 बिट्स और रिमेनिंग 2 बाइट्स बिलोंग्स टू द होस्ट पोर्शन. ये दो जो बाइट्स है वो होस्ट की इंफॉर्मेशन बताएंगे और ये दो फर्स्ट दो बाइट्स है वो नेटवर्क इंफॉर्मेशन बताएंगे. तो इस तरह से 10 अगर है एमएसबी में तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है. देन क्लास सी. सो क्लास सी में अगर ऑक्टेट 110 है, फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज है हमारी बाइनरी में अगर वो 110 है, सो दैट इज बिलोंग टू क्लास सी. और इसके एड्रेसेस की रेंज क्या रहेगी 192 टू 223. तो देखिए यहाँ से 192 से स्टार्ट हुआ है, हम 223 तक ये एड्रेस लेके जा सकते हैं. सो पहले 24 जो बिट्स है वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बताएंगे और जो बाकी के जो एक ऑक्टेट है 1 बाइट है लास्ट वाला वो हमको होस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. और ये क्लास सी कब यूजफुल है, जब स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम छोटी सी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तब हम क्लास सी का यूज करेंगे. देन क्लास डी एंड ई. सो क्लास डी एंड ई जो है वो नॉर्मली रिजर्व है. ओके, सो क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग एंड यूजर को इसके एड्रेसेस हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड क्लास ई इज यूजफुल फॉर फ्यूचर वर्क और सम एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस लाइक R&D वर्क. ओके, सो क्लास डी एंड ई जो रिजर्व्ड है and class E is for R&D purposes. So this type of addressing scheme is known as classful addressing and resulted in very wasteful of IP addresses. So fix range दी गई है, blocks की कुछ range दी गई है, उस range में ही हमको हमारे addresses fix करना है और कम addresses है तो पूरा का पूरा block waste जाता है. Okay, so this is about classful addressing. The classless addressing. सो जो भी हमारा अभी ड्रॉबैक था कि एड्रेसेस वेस्ट जाते हैं, सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एड्रेस डिप्लेशन. उसको हम बोलेंगे एड्रेस डिप्लेशन. सो टू ओवरकम द एड्रेस डिप्लेशन एंड टू गिव मोर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू द इंटरनेट, द क्लासलेस एड्रेसिंग वाज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड. सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एड्रेस डिप्लेशन, जो भी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए क्लासलेस एड्रेसिंग की स्कीम हमने इम्प्लीमेंट की है. तो इसमें क्या होगा, देयर आर नो क्लासेस बट द एड्रेसेस आर स्टिल ग्रांटेड इन ब्लॉक्स. मींस वहां पे हमने क्लासेस डिसाइड नहीं किए हैं, क्लासेस जनरेट नहीं किए हैं एंड जो ब्लॉक्स है वो है लेकिन वो वेरिएबल लेंथ के हैं. सो एज पर द रिक्वायरमेंट यूजर उसको एक्सेस कर सकता है. ओके, so needs to be connected to the internet. It is granted a block of addresses. The size of the block varies based on the nature, size and need of the entity. Suppose जिस यूजर की और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वेरिएबल साइज के ब्लॉक्स एक्सेस कर सकते हैं और नंबर ऑफ एड्रेसेस एक्सेस कर सकते हैं. ओके, द क्लासलेस एड्रेसिंग डज नॉट डिवाइड द एड्रेस स्पेस इनटू क्लासेस. It provides a variable length blocks which has a range of addresses according to the need of user. जैसी जैसी यूजर की नीड है वैसे वैसे एड्रेसेस अलोकेट होते जाएंगे. क्लासलेस एड्रेसिंग में जैसे हम क्लासफुल एड्रेसिंग में डिवाइड करते थे IPv4 एड्रेस को, वैसे ही हम 2 पार्ट्स में एड्रेस को डिवाइड कर रहे हैं इन क्लासलेस एड्रेसिंग. सो फर्स्ट प्रीफिक्स और सफिक्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 32 बिट्स एड्रेस स्पेस को. तो first 16 bits for prefix and last 16 bits for suffix. So prefix denotes the network ID. तो ये पहले 16 bits हमको network ID और network information बताएंगे और last जो 16 bits है वो हमको host की information बताएंगे. And this is the example of classless addressing. So let us summarize today's lecture. Today we have studied what is classful addressing and what is classless addressing. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning.